کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال پروفیسر شاہد رسول کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ پروفیسر شاہد رسول کو فوری نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا، فیملی بھی اسپتال پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ابراہیم رند ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل یہ جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پروفیسر شاہد رسول، جن کو دل کا دورہ پڑا ہے، جس کو فوری طور پر نجی اسپتال ہے نیشنل میڈیکل سینٹر کالا پل پہ، وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان کی ECG کی گئی اور دیگر روٹین کے ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی فیملی اور جناح اسپتال کے تمام انتظامی جو افسران ہیں وہ بھی وہاں پہ اسپتال میں پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ پروفیسر شاہد رسول کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس حوالے سے ڈاکٹروں نے ان کی فیملی کو بھی فوری طور پر اسپتال پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے، اور دیگر جو تمام ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی وہاں پہ نیشنل میڈیکل سینٹر میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ ابتدائی طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ گزشتہ کئی روز سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے، اور کئی بار پہلے بھی جو ہے وہ ECG انہوں نے کرائی تھی، اور آج جو ہے ان کی اچانک طبیعت خراب ہونے پہ ان کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے اسپتال کی انتظامیہ نے ان کی فیملی ممبران اور ان کے جو خاص ڈاکٹر ہیں ان کو بھی وہاں پہ طلب کر لیا ہے۔ جی، ڈاکٹرز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ابراہیم بتائے گا، کیا اس کے علاوہ بھی انہیں کوئی بیماری یا مرض ہے؟ ابتدائی طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے وہ ایسی تکلیف میں یہاں پر آتے تھے اور اپنا معائنہ کرا کے ECG وغیرہ کرا کے چلے جاتے تھے اپنے اسٹاف کے ساتھ، لیکن آج ان کی حالت جو ہے وہ زیادہ بگڑی۔ جیسے دل کا دورہ پڑا تو اس کے بعد ان کی فوری طور پر لے کے ان کو وہیں ایمرجنسی میں لے گئے، جہاں پہ ان کو شعبہ امراض قلب میں لے جایا گیا، جہاں پر ان کی ابھی بھی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فیملی کے جو خاص ممبران ہیں ان کو فوری طور پر اسپتال پہنچنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، تاکہ ان کو مزید جو ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ آگاہ کر سکے۔ تو فی الحال یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر ان کو دل کے عارضے کی تکلیف تھی، لیکن باقی جو ہے اس حوالے سے ان کی باقی ہسٹری بھی تھوڑی دیر بعد ان کی فیملی سے پتہ چل جائے گا کہ آیا ان کو کیا کیا بیماریاں لاحق ہیں، اور اس حوالے سے مزید ڈاکٹروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی ابراہیم بتائے گا، ان کی موجودہ حالت کیا بتائی جا رہی ہے؟ کیا وہ خطرے سے باہر ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل ان کی جو انتظامی افسران ہیں جناح اسپتال کے، ان کا کہنا ہے کہ ان کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جس طرح ان کو ڈاکٹروں کی اسپتال کی جانب سے کال کی گئی ہے کہ فوری طور پہ اسپتال پہنچے، اور ان کی فیملی کو بھی فوری طور پہ اسپتال پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے ان کو فوری طور پر ان کی فیملی کو وہاں پہ طلب کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی جو حالت بتائی جا رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور یہ بتائی جا رہی ہے کہ تسلی بخش ان کی حالت نہیں ہے۔ تو فی الحال ان کے جو اپنی فیملی ہے انہوں نے بھی اس معاملے پہ جو وہ فی الحال کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کیا ہے، جب تک وہ ان کی مکمل فیملی وہاں پر نہیں پہنچے گی۔ اسپتال کے ڈاکٹروں سے مشاورت جاری ہے کہ آیا ان کو کیا تکلیف ہے اور آگے ان کا کیا ہوا ہے اور حالت ان کی کیسی ہے۔ تو فی الحال جو ہے غیر متعلقہ افراد کو اسپتال کے اندر بھی نہیں جانے دیا جا رہا، کیونکہ یہ نجی اسپتال ہے۔ صرف جو ان کے گھر کی فیملی ہے صرف ان کو اندر جانے دیا گیا ہے، اور جیسی ابھی فیملی ان کی باہر آئے گی تو مزید بتائے گی کہ آیا ان کی حالت کتنی تشویشناک ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بری خبر نہ ہو، تو اس حوالے سے ابھی کہنا کچھ قابل از وقت ہوگا، لیکن ان کی فیملی کو فوری طور پر اسپتال پہنچنے کی اور وہاں پہ طلب کر لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال پروفیسر شاہد رسول کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال ڈاکٹر سلیمان نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جناح اسپتال کا سربراہ پروفیسر شاہد رسول کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ آپ کو بتائیں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال پروفیسر شاہد رسول کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں۔ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال ڈاکٹر سلیمان نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جناح اسپتال کا سربراہ پروفیسر شاہد رسول کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ آپ کو بتا رہے ہیں جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال ڈاکٹر سلیمان نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جناح اسپتال کے سربراہ پروفیسر شاہد رسول کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال پروفیسر شاہد رسول کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں۔ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال ڈاکٹر سلیمان نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جناح اسپتال کے سربراہ پروفیسر شاہد رسول کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ابراہیم رند سے۔ ابراہیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول جو ہے وہ تھوڑی دیر قبل
निजी अस्पताल में इंतकाल कर चुके हैं और इनको हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इनको फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर जो है दौरान इलाज वो इंतकाल कर रहे हैं। इसकी तस्दीक जो है वो ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुलेमान जो है जिना अस्पताल के, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये इतला उनका पहुंच चुकी है कि वो इंतकाल कर चुके हैं। और इस हवाले से जिना अस्पताल के जो इंतजामी अफसरान हैं और वाईडीए के अहदेदार हैं और दीगर जितने भी उनके चाहने वाले, वो भी वहां पर निजी अस्पताल मेडिकल सेंटर में पहुंचना शुरू हो गए, जो कि काला पुल पर है। और इसी तरह उनकी फैमिली को भी फौरी तौर पर निजी अस्पताल की इंतजामिया ने अस्पताल में पहुंचने की हिदायत कर दी गई। तो उनकी फैमिली के कुछ मेंबरान जो हैं वो निजी अस्पताल पहुंच चुके हैं, जबकि जिना अस्पताल के भी तमाम इंतजामी अफसरान पहुंच चुके हैं। और इनकी मौत के हवाले से, इनके इंतकाल के हवाले से जो खबर है वो कंफर्म कर रहे हैं जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुलेमान, जिन्होंने कंफर्म किया और वो अपने बाकी डॉक्टरों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि जिना अस्पताल के जो सरबराह हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। और इस हवाले से जो है काफ़ी गम और दुख का इजहार किया जा रहा है उनके चाहने वालों की तरफ से। तो इस हवाले से जिला अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोफेसर शाहिद रसूल, वो इंतकाल कर चुके हैं। इससे कबल वो जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनात थे और अभी भी गुज़श्ता कई माह से जो है वो जिना अस्पताल के सरबराह के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जरा यही बताते थे कि वो आए रोज यहाँ पे नेशनल मेडिकल सेंटर जो कि काला पुल पे था, यहाँ पे अपना मायना कराने आते रहते थे। और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान उन्होंने 2 से 3 बार अपना दिल का जो टेस्ट है ECG भी कराया था और उस हवाले से मजीद उनका वहाँ पे मायना और चेकअप भी कराया जा रहा था। तो इस हवाले से आज जो है इनको दिल का दौरा पड़ा सुबह और उनको लेकर वहाँ पे फौरी तौर पे अस्पताल में ले गए गए, जहाँ पर अभी थोड़ी देर कबल उनका जो है वो इंतकाल हो चुका है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ शबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो हैं वो भी इस हवाले से जो वो उनसे उनकी फैमिली से ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। और इस हवाले से अस्पताल के जो ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुलेमान, वो उनकी इंतकाल के हवाले से कंफर्म कर रहे हैं कि उनका इंतकाल हो चुका है। जी ठीक है इब्राहिम, आप हमारे साथ ही रहेगा। मज़ीद बात करने के लिए आजिज़ जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल का इंतकाल हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से प्रोफेसर शाहिद रसूल के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि डॉक्टर शाहिद रसूल का शुमार मुल्क के बेहतरीन सर्जन में होता था। डॉक्टर शाहिद रसूल की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआ की और उनकी फैमिली के लिए कहा कि अल्लाह उन्हें सब्र अता करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से प्रोफेसर शाहिद रसूल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया और कहा गया है कि मुल्क एक मारूफ सर्जन से महरूम हो गया है। डॉक्टर प्रोफेसर जो शाहिद रसूल हैं वो जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उनकी साबिका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली के इंतकाल के बाद तकरीबन 2 साल कबल ये जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के जो हैं, जिसको आमतौर पे जना अस्पताल कहा जाता है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर हुए थे और आज उनके इंतकाल की ये अफसोसनाक खबर सामने आई है। जी इब्राहिम रिंद और आजिज़ जमाली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का इनेकाद, टॉर्च रैली मज़ार क़ायद से शुरू। वज़ीर आला सिंध बोले, नेशनल गेम्स की ट्रॉफी क़ायद आज़म के हाथ से दी गई थी, अब हमने टैलेंट को ओलंपिक्स की तरफ ले जाएंगे। तमाम मुकम्मल इंतज़ामात, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हर इवेंट कामयाब होगा। यूथ गेम्स भी कराची में मुनक़िद, अरशद नदीम की तरह नए ओलंपिक हीरोज़ सामने आएंगे। आपको बताएं कि नेशनल गेम्स की ट्रॉफी क़ायद आज़म के हाथ से दी गई थी, अब हम नए टैलेंट को ओलंपिक्स की तरफ ले जाएंगे। तमाम मुकम्मल इंतज़ामात, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही इज्जत की बात है 18 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स, नेशनल ओलंपिक्स हमारे इस शहर कायद आजम के शहर कराची में हो रहे हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि हम कायद आजम की मज़ार के सामने वो जो पहला इवेंट है इसका टॉर्च रिले का, उसका एहतमाम कर रहे हैं। कराची फिर वो शहर हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा
नेशनल ओलंपिक्स का एहतमाम हुआ है। 24 मुकामात हैं जहाँ पे ये गेम्स होंगे। मैं ये चाहूंगा कि आप कराची के शहरी हर इवेंट को एक फुल हाउस करें ताकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो और ये नेशनल गेम्स इंशाल्लाह ताला आज तक के होने वाले कामयाब तरीन नेशनल गेम्स हो। यूथ नेशनल ओलंपिक्स जो हर 2 साल में होंगे, आप बच्चों के लिए जिसमें 14 से 17 साल के खिलाड़ी शिरकत करेंगे, उसका इनेकाद भी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन करेगी। बहुत सालों बाद हमने जैवलिन में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन गेम्स में जो 6 दिसंबर से यहाँ शुरू हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड ओलंपिक्स के अंदर हम वो खिलाड़ी पैदा करें कि वहाँ जाके मेडल्स हासिल करें। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी। नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की तकरीब आज मज़ार कायद पर सजी। सरदार बख्श बहर बोले, नेशनल गेम्स में 34 खेल कराची के 24 मुख्तलिफ ममालिक पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान भर से 11,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशल्स शिरकत करेंगे। बहुत आज खुशी की बात है, फख्र की बात है कि 18 साल के बाद ये सिंध को नेशनल गेम्स होस्ट करने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म नेशनल गेम्स का हर एक पाकिस्तान के कोने कोने से जो हमारे प्लेयर्स यहाँ आएंगे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। मैं पूरी उम्मीद हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है ओपनिंग और क्लोजिंग में हमें इज्जत बख्शेंगे और इस गेम्स की शान को और आगे बढ़ाएंगे। 24 वेन्यूज जो है वो सिलेक्ट किए और इंशाल्लाह ताला उन 24 वेन्यूज में नेशनल स्टेडियम से ओपनिंग क्लोजिंग होते हुए 24 वेन्यूज में ये गेम्स होंगे। 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी। नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की तकरीब आज मज़ार कायद पर सजी। रैली में स्कूल्स के तलबा और तालिबात, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, आगाह कीजिएगा। मज़ार कायद पर 35वें नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की इफ्तिदाई तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह थे, जबकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद और जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद और इसके अलावा दीगर एथलीट और स्कूल्स के तलबा और तलबात ने इसमें शिरकत की। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा इम्तियाज़ साहब, यकीनन जो है वो सिंध हुकूमत और वज़ीर खेल के बाद जो है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने बड़ा ही ज़बरदस्त ये आज इवेंट मुनक्किद किया जिसको कामयाब बनाया। आप क्या समझते हैं जो नेशनल गेम्स की मुख्तलिफ इवेंट हैं जो कि 24 वेन्यूज़ पे होंगे, उसको भी कामयाब बनाने के लिए आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और ये तमाम वेन्यूज़ कौन कौन से हैं और जो है जब इसकी इफ्तिदाई तकरीब होगी वो भी नेशनल स्टेडियम पे रखी गई है, तो उसमें जो है आप क्या समझते हैं क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है इफ्तिदाई तकरीब के जो है मेहमान खुसूसी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त फ़ंड पाकिस्तान ओलंपिक को, सिंध ओलंपिक को प्रोवाइड किया और ये नेशनल गेम्स जो 35वें नेशनल गेम्स हैं ये तकरीबन 18 साल के बाद मुनक्किद हो रहे हैं सिंध के अंदर। तो सिंध के लोगों में, गवर्नमेंट में बहुत ही जोश और जज्बा है और आज हमारे यहाँ टॉर्च का इफ्तिताह था। हज़ारों की तादाद में बच्चे और मुख्तलिफ एसोसिएशन के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ और उम्मीद है कि जिस जोश और जज्बे के साथ लोग काम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ है, तो ये एक शानदार तकरीब होगी। हमारी कोशिश ये है कि ये पाकिस्तान का अब तक जितने भी नेशनल गेम्स हुए हैं ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम हो। तो हमारी मेहनत, हमारे काम, हमारी सारी वर्किंग जो है बिल्कुल ऑन है, बेहतरीन है और इंशाअल्लाह ताला 6 दिसंबर को इसकी इफ्तिताई तकरीब होगी जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं
तो वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि जो एशियन ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर हैं, जिनका ये कहना है कि आज जिस तरह की टॉर्च रैली की इफ्तिदाई तकरीब बड़े शानदार तरीके से हुई, वहीं जो है नेशनल गेम्स की जो इफ्तिदाई तकरीब है, जो कि 6 दिसंबर को नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी, जिसके मेहमान खुसूसी आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे। इफ्तिदाई तकरीब के साथ साथ जितने भी वेन्यूज़ हैं 24 इवेंट्स में भी जो है वो उन इवेंट्स को भी कामयाब बनाया जाएगा। और जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पहले नेशनल गेम का इफ्तिदा भी यहीं से किया था, मदार कायद से। और जो है नेशनल गेम में तकरीबन 11,000 से ज़ायद एथलीट जो है वो शिरकत करेंगे। और इनका ये भी कहना था कि जितने भी एथलीट शिरकत कर रहे हैं उसमें से एक नया टैलेंट निकालेंगे जो कि हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिला सके। आपको बताएं कि IBA सेंटर फॉर बिजनेस एंड इकनॉमिक्स रिसर्च की 5वीं सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ गैर मुल्की मंदूबीन की भी शिरकत। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA मेन कैंपस में, और 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज गालिबन दूसरा रोज़ है। और आज भी मुल्की और गैर मुल्की मुकर्ररीन की जानिब से यहाँ पर मईशत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। पैनल डिस्कशन आज की कॉन्फ्रेंस का जो हिस्सा है वो रही है। इसके अलावा आज खुसूसी तौर पर साबिक वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने बज़रिया वीडियो लिंक जो है कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। गैर मुल्की मुकर्ररीन गुज़िश्ता रोज़ भी हमें यहाँ पर देखने को नजर आया। वर्ल्ड बैंक के खुसूसी नुमाइंदा जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं, उन्होंने शुरा से खिताब किया। और यकीनन तौर पर IBA की बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो MBA के हैं या BBA के हैं और मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के हैं, तो वो बहुत बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर देखने को नजर आते हैं। मेरे कैमरा मैन अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि गैर मुल्की मुकर्ररीन मंदूब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किसी का ताल्लुक इटली से है, तो कोई जो है ऑस्ट्रिया से है, इंडोनेशिया से और दीगर ममालिक से यहाँ पर मुकर्ररीन मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले आपकी बात कराते हैं। मैडम, a very good afternoon. Welcome to Karachi. It's the second day of this conference. What would you like to say? What kind of message would you like to give on behalf of this conference to the students of IBA and the viewers who are watching you on television? I would like to say thank you for inviting me here. It is a very wonderful conference, very good presenters, and for me personally it was an eye-opening experience because I'm from Europe, so well, the problems that Europe has and the problems that Pakistan has are completely different. So I'm very glad to know more about Pakistan and your region. Can you please describe this conference, or that what is the purpose of this international conference and what kind of message they are delivering towards? The purpose is development, as far as I know that. So well, how could Pakistan improve? How could Pakistan's economy grow and people live better and then happier? बिल्कुल जी, बेटर एंड डेट हैप्पी। और जैसे कि उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस का बिलखुसूस सिर्फ ये मकसद है कि ज़रूरी जो कह सकते हैं इकनॉमिकल के जो तकाज़े हैं उससे तलबा को जो है हम आहंग करवाएं। हमारे साथ ऑस्ट्रिया के जो हमारे प्रोफेसर हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। सर, थैंक यू सो मच। व्हाट वुड यू लाइक टू से? Well, I'm really glad to be here. I'm quite impressed about the rigorousness, the academic rigorousness and power that this conference exhibits. So there's a very high quality conference, and what I've seen from the students also, extremely diligent, smart and intelligent, and I can only congratulate the university to these students and congratulate IBA to this conference. It's wonderful. It's wonderful. Sir, what would you like to say? Big congratulations and thank you, terima kasih for the quality of our voices from all over the world for beautiful and quality conference. Thank you. बिल्कुल जी, इटली से भी हमारे एक मंदूब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कराते हैं। वेरी लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज यूरोप इज हियर। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से? Yeah. It's already my second time here. I was here for the 4th international conference organized by IBA last year in December, and I'm back just because this place is really wonderful. The campus looks great, and the organization of this conference is really perfect on everything. Also the team, also the speeches are very, very interesting, and so I'm really happy to be here again in Karachi. We are also happy to have you guys here in Karachi, madam. If we talk about the hospitality of Pakistanis, so how are you watching? I'm impressed actually, yes. So the people are very hospitable, very nice, and I really love the people of Pakistan.
How long you have been here? For last 2 to 4 days? I just arrived yesterday morning, so just one day, but I will have Saturday. So on Saturday, I hope to explore Karachi more. I would recommend you guys to visit our local market because you will get a very great and beautiful, reasonable stuff in a very cheapest rates. Madam, what about the food? Have you ate anything here? Because Pakistan is one of that country who is most famous in all over the world regarding the spices. So have you ate anything here? Yes, I have. Well, in my culture, we didn't use so much spices, but I do love Pakistan food. I liked it. Sir, Italian dishes are also much famous. Yeah. So I think it might be similarities regarding the spices. I don't know. No, actually, we don't really use so many spices in Italy. But yeah, it's the food here is really great. Actually, I think it's like same quality as the Italian one. Really, it's really great. I mean, I'm enjoying the food a lot. Yeah. You're from Indonesia, and you know, in a couple of days we will going to celebrate the Indonesian National Day here in Karachi. Our Indonesian consulate will going to be organized, and Austria consulate also will going to be organized. What about the food? I heard about the cooperation between the two nations yesterday. I would like to particularly focus on the food for thoughts instead, that we are striving to formulate the best agenda and the best formula for changing situation, that we'd like to cooperate together to formulate better policy, to combat poverty, to lessen the poverty alleviation, and socially include the gender and the marginalized group. That's the top of the secret conference essentials that I got, apart from the food itself. Very wise words regarding the food itself, though. So I have tried various types of food. Everything excellent. It's spicy, that's true, but it's eatable. No, for a European. So I enjoyed it very much. हमारे जो गैर मुल्की मंदूब हैं, ये कराची के और बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के चटपटे खानों से जो है यकीनन तौर पर काफ़ी गर्विदा जो है वो दिखा देते हैं। और इनका ये कहना है कि IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची ने ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2000 सजाई है, इसका इनकाद बहुत अच्छा है, बहुत खुशाइंद है। और इनका ये कहना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस यकीनन तौर पर वक्त की एक अहम ज़रूरत है। और आज हमने देखा कि आज दूसरे रोज़ भी तलबा व तालिबात की बहुत बड़ी तादाद जो है समातगाह के अंदर मौजूद थी, और इन गैर मुल्की मंदूब से जो कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे इनके तजुर्बात से इस्तिफादा करते हुए हमें दिखाई दिए। जी ठीक है, सैयद ज़ुबैर राशिद हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ महकमों के सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले, शमशाद अली चांडियो सेक्शन अफसर महकमा बराए बल्दियात तैनात, शमीम हैदर सेक्शन प्रोक्योरमेंट स्कूल तालीम तैनात, सेक्शन अफसर प्राइमरी 3 स्कूल तालीम का इजाफी चार्ज ज़रार खान खास खेली के सपुर्द, ज़रार खान सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहनियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, आज़ाद से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि मुख्तलिफ महकमों के सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले, शमशाद अली चांडियो सेक्शन अफसर महकमा बराए बल्दियात तैनात कर दिए गए हैं, शमीम हैदर सेक्शन प्रोक्योरमेंट स्कूल तालीम तैनात कर दिए गए हैं, सेक्शन अफसर प्राइमरी 3 स्कूल तालीम का इजाफी चार्ज ज़रार खान खास खेली के सुपुर्द कर दिया गया। ज़रार खान सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 तैनात कर दिए गए हैं, जबकि बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वाले से बात कर लेते हैं, आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ महकमों के 3 सत्रह के सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसके 2 अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जा चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन अफसर महकमा आपाशी शमशाद अली चांडियो का तबादला करके उनको सेक्शन अफसर महकमा बराए बल्दियात तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्शन अफसर प्राइमरी 3 स्कूल तालीम शमीम हैदर का तबादला करके उनको सेक्शन अफसर प्रोक्योरमेंट स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्शन अफसर प्राइमरी 3 स्कूल तालीम का इजाफी चार्ज ज़रार खान खास के लिए सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि ज़रार खान खास के लिए इस वक्त सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 स्कूल तालीम के ओहदे पर विराजमान है। जी ठीक है आज़ाद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शहर कायद में तरक्की की रेस, शहरी मंसूबे बर्क रफ्तार पर 7 अरब 66 करोड़ के 9 बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने की राह पर।
शहर की तश्कील में तेजी, KDA के 76 मंसूबे जारी। शर्जील मेमन बोले 18 अरब 36 करोड़ की लागत से KMC के 200 मंसूबे मुकम्मल होंगे। शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए वाटर कॉर्पोरेशन और LTA ऑन ग्राउंड। अवाम की जिंदगियों में बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत कोशा है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। आजिज जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज बताइएगा। जी हाँ, देखें, सिंध के सीनियर वजीर हैं शर्जील मेमन, उनका यहाँ पर एक बयान जारी हुआ है खासतौर पे सूबा सिंध के तरक्याती मंसूबों के हवाले से। शर्जील मेमन कहते हैं कि शहर में जो है तेज रफ्तारी से तरक्की के मुतअद्दिद बड़े मंसूबों पर काम जारी है। कराची में 9 बड़े मंसूबे 7 अरब 66 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिनमें KDA के 76 मंसूबे हैं और जो 13 अरब 22 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हो रहे हैं, जबकि KMC की 200 मंसूबों पर 18 अरब 36 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड एंड लेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी मुतअद्दिद मंसूबों पर काम कर रही है। हब कैनाल और डिमलोटी में पानी के मंसूबों पर काम हो रहा है। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे पे नुमाया इकदाम कर रही है। मौजूदा माली साल में 130 स्कीमों के तहत 1280 तालीमी यूनिट्स जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिस पर तखमीना लागत 15 अरब 57 करोड़ रुपए है और 1 अरब 88 करोड़ रुपए की लागत से इस मंसूबे के लिए पहले ही रकम जारी किए गए हैं। शर्जील मेमन कहते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से तरक्याती काम जो है वो जारी हैं और सिंध हुकूमत के ये तमाम तरह जो इक़दाम हैं वो अवामी ज़िंदगियों में बेहतरी, तालीम के मयार में इजाफा और शहरी सहूलियात के जदीद मयार के लिए किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आजिज जमाली, मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि ख़वातीन के लिए माली वसाइल तक आसान रसाई की नई स्कीम मुतारिफ करने का फैसला। ख़वातीन को मुआशी सरगर्मियों में भरपूर किरदार देकर सूबे की तरक्की में शराकतदार बनाएंगे। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा कि स्कीम मुंतखब माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और इदारों के ताउन से शुरू होगी। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, इस हवाले से बताइए। जी देखिए, सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट है शाहीना शेर अली, इनकी ज़ेर सदारत कारोबारी ख़वातीन के लिए माली मुआवनत के मुतालिक एक इजलास हुआ है। इस इजलास में बिजनेस वुमेन के लिए माली वसाइल तक आसान रसाई के लिए एक नई स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इस स्कीम के अमली तरीक़ेकार, शफाफ कर्ज की फराहमी, ख़वातीन को अपने कारोबार के फ़रोग में सहूलत देने के इक़दाम पर गौर किया गया है। शाहीना शेर अली कहती हैं कि ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना हमारी अवलीन तरजीह है और ख़वातीन को माशी सरगर्मियों में भरपूर किरदार अदा करने के लिए हुकूमत जो है मुकम्मल जो है वो मुआवनत फराहम करेगी। स्कीम मुंतखब माइक्रो फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस इदारों के ताउन से शुरू की जाएगी। चूँकि इस इजलास में बैंकों के नुमाइंदगान भी शरीक थे। सेक्रेटरी महकमा तरक्की नस्वा रशीद अहमद जरदारी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदगान और दीगर बैंकों के नुमाइंदे भी शरीक थे, जिनको बात करते हुए शाहीना शेर अली का कहना है कि ख़वातीन को मुआशी खुद मुख्तार बनाने और सूबे में रोजगार के नए मौके पैदा करने की स्कीमें जल्द से जल्द शुरू की जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज जमाली आपका। हुकूमत का 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी लाने का प्लान। अगले 5 बरस में टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात 29 अरब डॉलर पहुंचाना होंगी। काटी के नायब सदर मोहम्मद तलहा कहते हैं कि पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ही बनानी चाहिए। जब तक बिजली और गैस की कीमत रीजनल ममालिक के बराबर नहीं होगी, कैसे मुकाबला हो सकेगा? मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। देखा जाए, खबरें आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान टेक्सटाइल पॉलिसी मरतब कर रही है। अगले 5 साल में जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट है वो 19 अरब डॉलर से बढ़ाकर जो है 29 अरब डॉलर यानी 10 अरब डॉलर का इजाफा। क्या ये मुमकिन होगा? जानते हैं। कोरंगी एसोसिएशन के नायब सदर इस वक्त तला मोहम्मद तला हमारे साथ मौजूद हैं। एक और पॉलिसी क्या समझते हैं हकीकत पर मबनी होगी? देखिए, पॉलिसी तो हुकूमत की 12 दफ़ा आ चुकी है और टेक्सटाइल पॉलिसी भी अभी जो इन्होंने अनाउंस किया है, इसका आई थिंक जो फ़ायदा असल होगा या जो इससे अगर जो ये रिजल्ट्स निकालना चाह रहे हैं वो तभी पॉसिबल है अगर ये इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड करें, अगर ये मुख्तलिफ एसोसिएशंस, टेक्सटाइल एसोसिएशन है या आपकी फेडरेशन है, उनको अपने साथ मिलाकर पॉलिसी तरतीब दें तो वो ज़्यादा बेहतर और कारामद साबित होगी।
अच्छा तनय साहब, अगर देखा जाए इस वक्त क्या मसले हैं, अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाने जाएं तो क्या रुकावटें हैं? पानी आप खरीद रहे हैं, बिजली आपकी महंगी है, गैस आपकी महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। बिल्कुल देखें, ये तो बेसिक इश्यूज हैं जो जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक आप एक्सपोर्टर से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सके कि वो ग्लोबली कम्पीट करे। यहाँ पे 2 बारिशें हो जाती हैं तो आपका पूरा निज़ाम दरम भरम हो जाता है। आप अगर बाहर का जो हमारा इम्पोर्टर है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये चीज़ें नहीं समझता कि आपके शहर में 1 दिन बारिश हो गई और उसका कंसाइनमेंट 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन डिले हो गया, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता। तो जब तक आप इन बेसिक्स को हल नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म की पॉलिसी अपना सही अंजाम दे सकेगी। जी, जैसे कि आपने सुना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हुकूमत जो पॉलिसी बना रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेक होल्डर जैसे फेडरेशन हाउस है, कराची चैम्बर है, साथ इंडस्ट्रीज उनसे मुशावरत की जाए और साथ ही जो मसाइल है, बिजली की लागत बहुत ज्यादा है, गैस की लागत बहुत ज्यादा है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की सप्लाई करें, तभी बरामदात बढ़ सकेगी। जी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल प्रोफेसर शाहिद रसूल इंतकाल कर गए। प्रोफेसर शाहिद रसूल दिल का दौरा पड़ने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जान बर ना हो सके। जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुलेमान ने प्रोफेसर शाहिद रसूल के इंतकाल की तस्दीक की। वज़ीर आला सिंध का जिना अस्पताल के सरबराह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। बोले, डॉक्टर शाहिद रसूल की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की मरहूम के बुलंद दर्जात और फैमिली के लिए सब्र की दुआ। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से, जो कि निजी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। जी इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल अफसोसनाक खबर है कि प्रोफेसर शाहिद रसूल जो कि जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका इंतकाल हो चुका है और सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी फैमिली यहाँ पर काला पुल पे मौजूद निजी मेडिकल सेंटर, नेशनल मेडिकल सेंटर जो है, यहाँ पर फौरी तौर पर लेकर पहुँची थी, लेकिन यहाँ पे दौरान इलाज वो इंतकाल कर चुके हैं। जिसके बाद जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुलेमान ने उनके इंतकाल की खबर की तस्दीक की है और वो समेत अस्पताल के जितने भी इंतजामी अफसरान हैं वो यहाँ पे निजी मेडिकल सेंटर के बाहर पहुँच चुके हैं और इनकी जो लाश है वो जिना अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल की जा रही है। तो बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, प्रोफेसर, नर्सेज और दीगर जो उनके चाहने वाले हैं और उनकी खास तौर पर फैमिली जो है वो इस निजी मेडिकल सेंटर के अंदर पहुँच चुकी है और यहाँ पे लाश वसूल करने के लिए यहाँ पर तमाम अफराद मौजूद हैं और इस लाश को जो है वो जिना अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल की जाएगी। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल खुद भी एक बड़े सर्जन थे। रिपोर्टक के हवाले से भी उन्होंने जिना अस्पताल में रिपोर्टक सर्जरी मुतारिफ कराई और वहाँ पे सर्जरी भी करते रहे, जबकि इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस का भी वो हिस्सा रहे, जबकि इसके अलावा जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर के ओहदे पर वो तैनात रहे हैं। तो उनके इंतकाल के बाद वज़ीर आला सिंध समेत दीगर आला शख्सियात ने भी गहरे गम और दुख का जो है इजहार किया है और उनकी फैमिली से ताज़ियत का इजहार किया है। तो इस हवाले से बड़ी तादाद में अभी भी निजी मेडिकल सेंटर के बाहर जो है उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं और अफसोस की बात है कि उनका इंतकाल के बाद जो है मुल्क भर से ताज़ियत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इस हवाले से इनकी जो लाश है वो जिना अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल की जा रही है और इसके बाद जो इनकी फैमिली के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया उनकी जो नमाज जनाजा और तदफीन कहाँ पर होगी, किस वक्त होगी। ये इस हवाले से फैमिली के साथ मुशावरत जारी है, लेकिन अभी इनके बड़ी तादाद में चाहने वाले निजी मेडिकल सेंटर के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और अफसोस की खबर सुनकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचना भी शुरू हो गए हैं और इस हवाले से उनकी फैमिली को भी उनकी फैमिली के साथ भी ताज़ियत करने का सिलसिला जारी है। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल के इंतकाल के बाद जो है तमाम अफराद जो हैं उनके चाहने वाले जो शदीद गम का इजहार भी कर रहे हैं और दुख की इस घड़ी में उनकी फैमिली के साथ भी शाना बशाना खड़े हुए। उनका कहना है कि वो प्रोफेसर शाहिद रसूल के इंतकाल की खबर सुनते ही उनको काफ़ी सदमा पहुंचा है और उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत का सिलसिला रखते हैं और पाकिस्तान जो है एक बड़े मारूफ और सीनियर सर्जन से महरूम हो चुका है, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर के सरबराह थे, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के सरबराह थे, जिन्होंने रोबोटिक समेत दीगर सैकड़ों की तादाद में सर्जरी की, वर्कशॉप की और मुस्तकबिल के डॉक्टरों को काफ़ी हद तक ट्रेनिंग व तरबियत दी और इस सवाल से उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्होंने एक शोबा तिब में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो आज इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है कि जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल इंतकाल कर चुके हैं। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया बराह रास्त अपडेट करने के लिए।